Obviously, all of us realize that the kids have a lot of potential and abilities, and the Indian industry corporate sector is also, it has become willing. ETA might not be fully ready, but they have a lot of role models, other companies who have taken in persons with disabilities and are happy with the performance of their employees. That is important. So it's not charity work. Our kids with disabilities have to prove themselves in the factories and the shop floors and in the companies or in the government organizations and be their own merit. So one should be very clear about it. But then obviously, as speaker after speaker has said, that the solid pipeline of well-trained, well-educated persons with disabilities is not there. The reasons are, first obviously the parents and the doctors, they need to be exposed to the fact, and to such role models, life can be like this. Not everyone can become Rahul Gupta or Shubham or Ira, but to the best of potential, we have to take the kids to those potentials. Then the teachers, obviously, a lot of time kids with disabilities end up not in inclusive schools but in special schools also. So from RCI, I see Subodh and Vineet here. So we might have about 50,000 special educators in the system. So how many of them know कि बच्चे को या अपने 5% बच्चों को हमने इराज या शुभम या ये बनाना है? Have they seen such successes in their lives? मैं जैसे कल अयोध्या में था, परसों लखनऊ में था, तो एक स्पेशल एजुकेटर से बात हो रही थी. I am sure not many of them have been exposed to them. So RCA से हमें एक स्पेशल कैंपेन लेना चाहिए कि people, our teachers, special educators, and then inclusive education वाले, they get exposed to the fact that potential is there and the possibilities are limitless. Then एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा था क्लास 8 के बाद. क्लास 8 के बाद चॉइसेस का सब्जेक्ट नहीं मिलता, मटेरियल नहीं मिलता, ये बहुत ही बड़ा है. कल को मैं एक स्कूल में था तो मैं पूछ रहा था कितने बच्चे आपके 10वीं पास हुए. कहते कोई ओपन स्कूल से हमने 2 बच्चे करा दिए पिछले 10 साल में 10वीं. किस सब्जेक्ट में कराया? वही कि मैथ्स और साइंस तो होता नहीं सर, आर्ट्स में कराया. और कॉलेज में तो ऑब्वियसली और समस्या है. एंड इफ यू सी द ग्राफ इज प्रैक्टिकली लाइक दिस. खासकर ब्लाइंडनेस और डेफनेस में तो बच्चे 8वीं वगैरह कर लेते हैं, कुछ 10वीं कर लिया, उसके बाद क्या? कितने बच्चों ने 12वीं किया, कितनों ने ग्रेजुएशन किया? ग्राफ इज अनफॉर्चुनेटली लाइक दिस. लोगों पर फॉर्चुनेटली लॉट ऑफ किड्स मैनेज टू गो टू द ग्रेजुएशन. कहीं को सब्जेक्ट नहीं मिलता है, एंड डेफिनेटली क्योंकि यू कांट ट्रैवल फार, the choices of colleges also get limited and the choices of subjects then obviously get limited. Industry relevant skills. Before this I was skill secretary for 1 year and that's unfortunately the refrain all around. Even अच्छे कॉलेजेस से बच्चे पास हो गए, इंडस्ट्री कहती है हमारे लायक नहीं है, हम तो फिर जीरो से ट्रेन करेंगे. बच्चे ने बीटेक कर लिया कंप्यूटर साइंस में या एमसीए कर लिया, इन्फोसिस से टीसीएस वाला कहते हैं मैं तो जीरो से शुरू कराऊंगा, 6 महीने खुद की रहेगा. Obviously with kids with disabilities this gap can be larger because the teachers have not exposed them to full potential, the library is not fully relevant for them. Maybe EPUBs आपको 10% किताबों के मिलेंगे, आप सेम सब्जेक्ट कर रहे हो, इक्वली शार्प हो, बट दूसरे बच्चे को पूरी लाइब्रेरी एक्सेसिबल होगी, ब्लाइंड बच्चे को 5% बुक्स EPUB में मिलेंगी. तो हमारी जो स्कीम्स है RCA का मैंने बात किया, DDRS वगैरह में जॉइंट सेक्रेटरी इधर हैं, होना है, हमारे डायरेक्टर में आए हैं. तो ऑब्वियसली यू हैव हर्ड लॉट ऑफ पीपल, so we need to sort of reimagine our schemes. Accessible India का भी घर से स्कूल या कॉलेज तक या घर से वर्क प्लेस तक. Is it a comfortable journey? There are so many factors. आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट लगेगा, पहले अपनी अपार्टमेंट में ही आपका दिक्कत आ जाएगी,
फुटपाथ पे दिक्कत आ सकती है, बस में चढ़ने में दिक्कत आ सकती है, ट्रेन में आ सकती है, टैक्सीज कितनी मिलती हैं उबर वगैरह, उबर एप्लीकेशन ही ब्लाइंड फ्रेंडली है कि नहीं, बड़ा दिक्कत वाले काम है सारे। एडिप स्कीम हमने एक कंफर्टेबल लिविंग के हिसाब से तो बनाया था, ठीक है ब्लाइंड एंड स्मार्ट कैन दे रहे हैं और चीज़ें दे रहे हैं, बट नौकरी के लायक के लिए क्या क्या चाहिए एडिप में। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप भी हमें सजेशंस दीजिए कि हम एडिप स्कीम में ऐसी और चीज़ें डालें विच मेक अवर किड्स रीच हायर एजुकेशन एंड रीच द जॉब लेवल पोटेंशियल। उसमें क्या क्या ऐड किया, जैसे हमारी ब्रेल प्रेस स्कीम में 1ली से 12वीं की हम किताबें देते थे, हायर एजुकेशन नहीं था उसमें, कंप्यूटर साइंस भी नहीं था, और कंप्यूटर सब्जेक्ट तो lot of blind kids now actually they know how to use iPhone much better than me, because for them it is lifeline, for us it is one of the gadgets। हम अपने गली में एक स्कूल में था जिसमें डेफ बच्चे काफ़ी थे, और कोई 5वीं था, कोई 8वीं में था। आई वॉज हैप्पी टू सी, मैंने एक्चुअली साइन लैंग्वेज के टेस्ट टाइप भी लिया अपने, मैं मोबाइल में 1-2 लाइनें लिखता था, फिर उनके इंटरप्रेटर को बोलता था, कोई बच्चों को बोलता था किसको इनेक्ट करके बता। सो आई वाज हैप्पी दे न्यू दिस। फिर मैंने एक बच्चे को पूछा मोबाइल है, इसे यस, मतलब उसने अपना मोबाइल निकाला, मैंने कहा अपने टीचर को वीडियो कॉल करें, द चाइल्ड वाज स्ट्रगलिंग, दिस इज अ लाइफ स्किल वी आर नॉट टीचिंग, दो वी आर टीचिंग साइन लैंग्वेज। हमारे ISL के मैं फैकल्टी को देख रहा हूँ, संजय को देख रहा हूँ, अपने ISL कोर्स में अपने को डेफ बच्चे को अगर सिर्फ साइन लैंग्वेज के अलावा बहुत कुछ सिखाना, लाइफ स्किल सिखाना है। ब्लाइंड बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं पर उस पर ट्रेनिंग नहीं दे रहे, अगर बच्चा 9th से ऊपर में आ जाता है उस पर अच्छी अच्छी ऐप्स नहीं डाल के दे रहे विच आर जॉब फ्रेंडली इन सेंस, जो उसके लिए ट्रेन करें। सो ऑब्वियसली सिप्टा का आप सबने कहा, एंड स्किल्स बहुत रेलेवेंट होने चाहिए, सिखाने का तरीका अलग होना चाहिए। तो वी हैव इनिशिएटेड समथिंग एंड आई एम हैप्पी लॉट ऑफ people who are acting as a bridge between the kids and the companies, they are here. So purely on consent basis of the child, जो data sharing वाला है, my team has initiated talks with 2-3 of such organizations. So we would like to create a network of such organizations कि बच्चों तक भी पहुँचे सिस्टम के थ्रू कि ये जो इस तरह की जॉब्स हैं, आप इस तरह की ट्रेनिंग कर लोगे तो यहाँ पे जॉब मिल जाएगी, एंड कंपनीज को भी एक पाइपलाइन दिखे कि इस तरह के बच्चे हैं, अगर फुली ट्रेंड भी नहीं है तो कंपनीज ट्रेन कर देती हैं। मैनी कंपनीज आर नाउ शोइंग दैट काइंड ऑफ कैपेबिलिटी। अब बच्चों को ले आओ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ, तो अपने काम के लायक हम बना लेंगे। फाइनली मिनिस्टर साहब कुड नॉट मेक इट टू दिस प्रोग्राम, उनको दिल्ली से बाहर काम आ गया था,